Good morning, class. Today we will start a new next topic of chapter 7 in microeconomics, that is short run production function and long run production function. First of all, you must know what is a short run or a long run. Short run means short period of time where the time is limited, where the time is defined. For example, 1 year, 2 year, 10 year, or etc. And long run is where the time is not defined. You can't say what is the time period. So, what is short run production function? Short run is a period of time when production can be increased with the increasing the application of variable factor. We have two types of factors, variable factors and fixed factor. Variable factor can be increase or decrease, but fixed factor cannot be changed. So, in short run, only production can be increased only by increasing variable factor. Fixed factor always remain constant. For example, we are a producer doing a production for a 1 year. In 1 year, he installed a plant and fix and with some variable factor. So in a 1 year, he cannot change its plant size or cannot be increase its plant because the time period is defined. जितने टाइम में वो प्लांट्स को चेंज करेगा, सब कुछ करेगा, इतने में तो उसका और एक्सपेंस बढ़ जाएगा, तो इतना तो वो नहीं कर सकता. तो वो प्रोडक्शन कहाँ से इंक्रीज कर सकता है? वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके. मीन्स अगर वो उसी प्लांट पे ही लेबर को और लगा दे, रॉ मटेरियल और लगा दे, तो वहां से वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है. तो यहाँ पे हमारे क्या रहेगी? फॉर एग्जाम्पल, लैंड है हमारी फिक्स फैक्टर है, कैपिटल है हमारी फिक्स फैक्टर है. तो उसने 1 ईयर के लिए जितने भी लैंड या कैपिटल लगाने थी वो उसको फिक्स करके उस पर वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करके वो अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है. दैट इज शॉर्ट रन और short run production function. For example, Qx is equal to f bracket L comma K. Listen, here Qx stand for output of a good, L stand for labor means variable factor, and k bar is equal to capital that is fixed factor. If k bar stand for fixed factors. If bar is not there, then that is variable factor. So जब शॉर्ट रन में उसने पहले लेबर, वेरिएबल फैक्टर है लेबर, उसने 5 यूनिट लगाए थे एंड कैपिटल 4 यूनिट लगाए थे, तब प्रोडक्शन मीन्स आउटपुट कितना आ रहा था? 40 यूनिट. तब अगर उसने फिर देन उसने क्या सोचा कि कैपिटल तो मेरी इंक्रीज हो नहीं सकती क्योंकि 1 ईयर का टाइम है, लेकिन उसने क्या किया? उस ही कैपिटल पे उसने लेबर को इंक्रीज कर दिया, लेबर बढ़ लगा दी उसी रॉ मटेरियल के साथ, रॉ मटेरियल लगा दी और कुछ लेबर इंक्रीज कर दी. मीन्स 5 की जगह उसने 7 लेबर कर दी. तो अब क्या हुआ? उसके आउटपुट में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. तो 45 यूनिट हो गई उसकी लेबर, वो सॉरी आउटपुट. दैट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. इट मीन्स in short run production function, production can be increased only by increasing variable factor. Variable factor can be means labor, raw material, etc. Now second is long run production function. Long run means where the time period is not defined. मतलब means a producer produce goods or do its business for a long time. So in long run production function is a period of time when the distinction between fixed factor and variable factor diminished. Means जो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच का गैप है वो वैनिश्ड हो जाता है. मीन्स फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर ऑल ट्रीटेड एज अ वेरिएबल फैक्टर. जहां पर हम फिक्स फैक्टर को भी वेरिएबल फैक्टर ही ट्रीट करते हैं, दैट इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. In this, production can be increased by increasing all factors. In short run, we can increase the production only by increasing variable factor, but in long run production function, we can increase the production by increasing both variable factor also, as well as fixed factor. यहाँ हम दोनों को ही increase करेंगे. For example, एक प्रोड्यूसर जहाँ पर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसने कोई टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है. उसकी एक ही थिंकिंग है कि मैं अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए चलाऊंगा, जब तक लाइफ है बिजनेस की मैं तब तक चलाऊंगा जब तक चलेगा. तो उसने क्या किया? फर्स्ट लेबर लगाई 5 यूनिट, कैपिटल लगाई 4 यूनिट.
तो उससे उसका आउटपुट कितना आया 40 यूनिट। उसने एक प्लांट को इंस्टॉल किया और उस प्लांट में 5 यूनिट लेबर लगाई एंड 4 यूनिट कैपिटल लगाई। देन उसने क्या सोचा कि अब मैं जो है अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपेंड करना चाहिए, तो उसने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अपनी कैपिटल को भी बढ़ा दिया, इंक्रीज किया, तो 4 से डबल कर दी उसने 8। आप 6 भी ले सकते हो, 4 से 6 का यूनिट ले ली या 8 यूनिट ले ली, कितना भी ले सकते हो। सिमिलर लेबर क्या कर दी उसने, अगर कैपिटल इंक्रीज की है तो उसने अपने वेरिएबल फैक्टर भी इंक्रीज किए। वेरिएबल फैक्टर उसने क्या कर दिया, वेरिएबल फैक्टर को भी इंक्रीज किया, क्योंकि उसने कैपिटल इंक्रीज की थी, डबल की थी, तो लेबर को भी उसने डबल कर दिया। तो इससे आपका आउटपुट क्या हो जाएगा 80। मीन्स अगर लेबर डबल हुई है, कैपिटल डबल हुई है, तो दोनों, तो उसका आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। दैट इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इन शॉर्ट it means in long run production function, production can be increased by increasing variable factor as well as fixed factors. Now we will do the difference between short run production function or long run production function. All you know, understand about the short run and long run. Now we will do the difference. So first point is, it is a production function in which factors ratio tends to change with the change in the volume of output. Means जैसे ही हम वेरिएबल्स में, मीन्स वेरिएबल फैक्टर में ही चेंज हुआ था ना शॉर्ट रन में, तो शॉर्ट रन में जितना वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट में चेंज आएगा। और इन लॉन्ग रन it is a production function in which factors ratio does not change with the change in the volume of output. Means हमारा कोई रेशियो में चेंज नहीं हुआ था। पहले हमारा क्या था, पहले हमारे लॉन्ग रन में 5 और 4 थे तो 40 था। देन क्या किया, हमने इसको डबल कर दिया। अगर ये दोनों डबल हुए तो ये भी डबल हुआ, तो रेशियो वही सेम चल रही है यहाँ पे, तो रेशियो में चेंज नहीं हुआ। मीन्स अगर हम फैक्टर्स को चेंज कर रहे हैं तो लॉन्ग रन में आउटपुट भी चेंज हुआ, तो मीन्स रेशियो सेम आ गई। लेकिन इन शॉर्ट रन में क्या हुआ था, शॉर्ट रन में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स के चेंज होने पे आउटपुट में बहुत ज्यादा चेंज आ गया था। देन सेकंड पॉइंट, आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर। इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वी ओनली इंक्रीज वेरिएबल फैक्टर, बट इन लॉन्ग रन वी इंक्रीज ऑल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर एज वेल एज fixed factor. The third point, scale of output remain constant no matter what the level of output is. हमें नहीं, कोई मैटर नहीं करता कि आउटपुट का लेवल कितना है, कम है या ज्यादा है। जो मेन आउटपुट है वो एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज रहे, कांस्टेंट रेट पर रहेगा। देन स्केल ऑफ आउटपुट टेंड्स टू चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे ही हमारे वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर दोनों इंक्रीज होंगे, उसी रेट से सेम हमारा आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टडीड विद द रेफरेंस ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर। हम शॉर्ट रन को रिटर्न्स टू ए फैक्टर भी कहते हैं और लॉन्ग रन को रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। दैट इज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। थैंक यू।